clarified first, and later I will proceed further in the assignment. So everybody please be attentive, and we will proceed from the question number 8. 7 questions have already been done. Question number 8. Your attention, please. Please look at the statement. The speed of the projectile at its maximum height is half of its initial speed. What is the angle of projection? Let me tell you, simplify it. What is given and what is being asked. Look here, bete. Suppose this is your football ground and some player kicks the football from here such that oblique projectile follows this trajectory. Question 8. Okay. Now, according to the statement, what is being said by the question setter? He says, whatever here velocity is and whatever here velocity is, let's call it velocity at the topmost point is called zenith. Zenith means choti. This is VZ, this is U. And according to statement, velocity at the top is half the initial velocity. Okay. Then what is being asked from us? This green angle, that is angle of projection of the projectile with respect to ground. Shabash. This is your question. Is there anybody who can guide me how to do? That means I should call the students on the mic. But Abhinur Brad. Abhinur Brad, please come on the mic. Shabash. Don't take it as a pressure. Please come on the mic. No one is coming. There is another student, Isha. Who is Isha? Please come on the mic. ISHA, Isha. हाँ बेटे, stand up. Again, no response. So that means I should shift to the non-medical. Gunraj Singh. Gunraj Singh. Please come on the mic, bete. Don't shy. It will be just a mutual discussion. I just want to check what idea can click the mind of a student. Yes, Gunraj. Bete, my simple question is, can you tell me some idea how to solve it? Some idea. First of all, tell me whether you have understood the question clearly or not. If not, I can explain it again, bete. Should I? Yes. Listen very attentively. Somebody has kicked the football from here with velocity u, and oblique projectile path is followed by the projectile. Topmost velocity is v subscript z. According to statement, the velocity at the topmost position is half the velocity initial. What is the angle of projection of the projectile with respect to horizontal? अगर ये दिया हो तो थीटा कितना है? Any idea, बच्चे? Any idea? That component. That component. किसके कंपोनेंट? इनिशियल वेलोसिटी के. सो अगर मैं इसके इनिशियल कंपोनेंट आपको बता दूं तो वर्टिकल कंपोनेंट बिकम्स u sin थीटा and horizontal component becomes u cos theta. What to do next? What to do next?
Sit down. So, medical students could not dare to come on the bike, but non-medical student was partial successful. Now let me make it clear, Biche. First of all, concept. But whether you take the projectile here, or you take here, or you take at the top, anywhere, you see the horizontal component of the velocity remains the same. How, sir? The answer is whenever projectile moves, not only it covers the vertical motion against gravity, but it also moves horizontally. So the motion which was against gravity cannot be said as uniform motion because there will be change in velocity. But during the horizontal motion, the only one thing which can restrict the forward motion is the air resistance. And in the concept as per syllabus of +1, air resistance is ignored. Therefore, the horizontal component of the velocity nowhere where the body is remains constant. So that means now at the top, if you draw the tangent, tangent gives the velocity direction at any moment. At the topmost point, the velocity is exactly horizontal. Therefore, vertical component is 0. Because if the vector is horizontal, vertical component remains 0. If the vertical vector is vertical, then horizontal component remains 0. Always remember this. So therefore, at the zenith point, topmost point, as the velocity is acting horizontally, so you can say initial velocity horizontal was u cos theta, and the motion being uniform, so Vz can be written as u cos theta. Okay, sir. Now initial velocity is u. According to statement, initial velocity magnitude and its half is equal to velocity at the top magnitude. So V u cos theta. So u gets cancelled. Half is equal to cos theta. Now half is nothing but cos of 60 degree. Now cos can be removed. Therefore, angle of projection comes out to be 60 degree. Let me tell you the highest learning point in this question was, let me repeat it once again. The horizontal component of the velocity at any location of the projectile remains constant because there is nothing to attract the body horizontally and there is no force to slow down the velocity. Only one component could have slowed down the velocity horizontally, and that is air resistance. But in your article, in your so young class, junior class, air resistance is being ignored. So that's why horizontal motion is uniform. And that's why whatever the horizontal velocity at the top position is, that is also taken at the initial velocity at horizontal velocity component at the initial point. So that concept has been taken into consideration. And now, according to the given statement I have put, now there is simple mathematics as per trigonometry. Please raise your hand if you have understood the solution. Yes? Please raise your hand. शाबाश. तो अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे सर एक सेंटेंस में बताना मेरे को टेक अवे क्या लेना है इस क्वेश्चन, बस एक ही लेना है. हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द मोशन प्रोजेक्टाइल का यूनिफॉर्म होता है और वो तभी मुमकिन है जब यू कॉस थीटा सारी जगह पर उतना ही रहे. बस यही है मेन टेक अवे. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9. Listen, a particle has initial velocity 3 I cap and 4 j cap and has an acceleration 0.4 I cap plus 0.3 j cap. Its speed after 10 seconds is how much? Shabash. Let's move to the next question. According to statement, the initial velocity of the particle
is given in the component form, and that is 3 I cap plus 4j cap. And acceleration of the body is also given in terms of components, 0.4 I cap plus 0.3 j cap. Time instant is given as 10 seconds. And final velocity is being asked. Shabash. Is there any student among medical students who can help the teacher how to do it? Shabash bete. Any idea clicking your brain? Medical students. Should I name the students in medical section? There is one student, Dahlia. Who is Dahlia? Please raise your hand. Who is Dahlia? No one. ये स्कूल नाम ऐसे ही लिख देता है, कोई बच्चा मेडिकल में हाथ भी नहीं खड़ा करता. योगिता. Who is योगिता? Raise your hand. आ जाओ बेटे माइक पर. शाबाश. No need to worry anything. It is just a mutual discussion between the student and his true well-wisher, her teacher. Okay? Please come on the mic. Can you give me some idea how to solve? Some idea, जो कुछ भी मन में आता. और उसमें तो u की वैल्यू फिर कैसे भरोगे आप? u तो वो ऐसे तो दिया नहीं हुआ, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड या ऐसे तो कुछ दिया नहीं हुआ. स्पीक आउट, स्पीक आउट. तो लिसन, शाबाश. आपको अगर मैं बोलूं आपका आंसर कितना सेटिस्फैक्टरी था, तो मैं कहूंगा बेटे आपको मैं दूंगा 100 में से 70 मार्क्स. 70. प्लीज सिट डाउन. सो जाओ बैठो. टेक योर सीट, टेक योर सीट. अब इस बच्चे को इसने मेरे को बोला सर v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगाऊंगी मैं. तो मैंने बोला ध्यान से सुनो बच्चे, अगर तुम v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगाओगी तो u की कंक्रीट वैल्यू तो है नहीं है कि जैसे मैं पुट कर दूं 5 मीटर पर सेकंड या a की वैल्यू पुट कर. तब इस बच्चे को जवाब देना आना चाहिए था. इसको क्या कहना चाहिए था? अगर ये बता देती तो मैं इसको 100 मार्क्स देता. इसको कहना चाहिए था सर, हालांकि हम ये इक्वेशन यूजुअली नॉन वेक्टोरियली लिखते हैं, पर अगर आप इसमें वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर वेक्टर भी लगा दोगे ना, तो ये तो ये इक्वेशन ज्यादा एक्यूरेट है. बस एक ख्याल रखना है, टाइम के ऊपर एरो नहीं लगाना, बिकॉज टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी. ओके, so that means this equation is valid vectorially. It means I just have to put the values. So v is equal to, let's call it, u की value teacher is filling up 3 I cap plus 4 j cap, and now I am putting the acceleration value 0.4 I cap plus 3 j cap, and the time is 10. Okay. So finally, I am getting, look here, 10 multiplied by 0.4. It becomes 4 I cap. When added to the 3 I cap, ultimately becomes 7 I cap. Now come to this. 10 multiplied by 3 J cap, 0.3 J cap, sorry. It becomes 3 J cap added to 4 J cap, 7 J cap. So this is your velocity in terms of vectors. When you see the options, the answer is not in vector form. Then you can say, sir, you have told us if the vector is given in components, if the vector is given in components like this, then its magnitude can easily be calculated. Ax square, ay square, az square, root. Okay, this basic I will use. Now I have the final velocity in terms of vectors. So therefore, final velocity vector magnitude, applying the above under root formula, 7 square plus 7 square under root.
That means twice of 7 square under root. That means 7 root 2 meter per second. And this option is given to us. Okay? एक बच्चे ने मेरे को और भी बताया तरीका। वो कहता, ध्यान से सुनना बेटे, वो कहता सर अगर आपको u दिया हुआ है तो आप u के ऊपर ये फार्मूला लगा दो। मैंने कहा कितना लगेगा बेटे? सर u का मैग्नीट्यूड क्या इतना नहीं आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट। मैंने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इतना ही आएगा। सर ए भी तो एक वेक्टर फॉर्म है एक्सेलरेशन वाला, उससे भी यही फार्मूला लगा लो तो आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, 0.4 स्क्वायर 0.03 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी आ गया। सर अब वेक्टोरियल ही लगाने की जरूरत ही नहीं है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, मैंने पुट कर दो। मैंने कहा अगर तुम ऐसे सॉल्व करोगे तब भी तुम्हारा फाइनल आंसर 7 रूट 2 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये मेथड भी ठीक है, ये मेथड भी ठीक। So who among you have understood these two methods of the numerical? Please raise your hand. Please raise your hand if it is clear. Medical students. Okay, शाबाश, बहुत अच्छे। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बेटे 9। क्वेश्चन नंबर 9। तो आपने क्या देखा, असली बात क्या देखी? सर ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होती है ना, ये वेक्टोरियली भी करेक्ट है। सर जैसे ये इक्वेशन वेक्टोरियली करेक्ट है, बाकी भी करेक्ट होती हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट होती हैं, लेकिन एक फर्क है। देखो कैसे, अगर मान लो कोई बच्चा मेरे से पूछता सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as को वेक्टोरियली लिख के दिखाना, तो जब मैं इसको वेक्टोरियली लिखूंगा, ध्यान से देखना बेटे, तो इसका वेक्टोरियल नोटेशन होएगा ट्वाइस तो एज इट इज, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। और वी स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास मान लो एल वेक्टर हो, उसका एल के साथ डॉट कर दूं तो एल एल इंटू एल कॉस ऑफ 0 डिग्री। सर ये कौन सा फार्मूला लगाया आपने? बेटे नॉर्मल फार्मूला, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। उसी को मैं ए को भी एल ले लिया, बी को भी एल ले लिया, और कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो ये एल स्क्वायर हो गया। सर क्या बताना चाहते हो? ये बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दिया हो तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। सर इसका मतलब ये बी वी स्क्वायर को आप ऐसे लिखना चाहते हो, फाइनल वेलोसिटी डॉट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डॉट इनिशियल वेलोसिटी। मैं कहूंगा यस, इसका वेक्टर नोटेशन ये आएगा। नोट कर लो जिसको नहीं पता था, वेक्टर नोटेशन ये आएगा इसका। ओके, तो अगर u और v कल को वेक्टर्स में दे रखे हो और a और s कल वेक्टर्स में दे रखे हो तो आप इसको लगा सकते हैं। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। एवरीबॉडी प्लीज रीड इट। एवरीबॉडी प्लीज रीड इट। And I want any one student from medical section to please come on the mic and reply. What is the correct option for question number 10? Medical student, if you don't want to come on the mic, you can raise the number of fingers accordingly. I mean to say, if you say option A is correct, please raise one finger. If you say option C is correct, please raise 3 fingers. So what is the answer for question number 10? Medical students. No, don't speak. Raise your fingers. तो ऑलमोस्ट कुछ बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, यस यस, बट नो स्टूडेंट इन ब्लू टी शर्ट इज रेजिंग द हैंड, नो स्टूडेंट। ओके, मेडिकल आंसर आई गॉट टू नो। लेट मी आस्क फ्रॉम द नॉन मेडिकल, बेटे रेज योर फिंगर अकॉर्डिंग टू योर पिक्ड ऑप्शन।
Shabash. Non-medical student says their range will be correct, and the same answer has been told by the medical students. So for the 10th question, you all deserve bravo from my side. Thumbs up to all you. Okay. So now, but as a teacher, it becomes my duty to tell you how. Let me tell you, there is one popular result. Everybody, please. Horizontal range at angle of projection theta with respect to horizontal is going to be equal to horizontal range at 90 minus theta. Both are equal. Sometimes in the examination, a question comes, prove that this. Okay. And now in our question, once this angle was 30 degree and other the angle was 60 degree. So if you put here, suppose 30 degree, and again on the other side 90 minus 30 degree, it automatically becomes a range at the 60 degree. So range at 60 degree, range at 30 degree, both are coming equal. So question number 10 has B option, correct? But now one question, subjective question comes, how can you say this thing? So for that, your attention, bete, for that, you will say, sir, do you know horizontal formula told by you for the range at an angle theta was this: u subscript y by 5 into u subscript x. I said yes. Sir, if you simplify it, accordingly, you will agree that it can be written as u sine theta upon gravity by 2 and u cos theta. I said okay. But it should be very much clear to you, sir, that this is your u velocity, this is your angle of projection, this is your x-axis, this is your y-axis. Okay. One more thing, bete. No, some students are not paying attention. That means they are deceiving themselves. Deceiving themselves. They are compromising with the quality of their career. Two goes upside. You and you get scared. You scare by gravity, and here you get 2 sine theta cos theta. So you get u square by gravity sine 2 theta. Okay. So this is your horizontal range at what angle? R theta. So now let me utilize the same formula at another angle. R 90 minus theta. Sir, what you will do now? I will just utilize the same formula, but changing the value of theta to, everybody please pay your attention, changing the value of theta to 90 minus theta. 90 minus theta. And if you see this, it becomes sine 180 degree minus twice of theta. And there is popular formula in mathematics, sine pi minus a is equal to sine of a. This is the popular formula. Pi means 180 degree. So you can say u square by g sine 2 theta. Now you can compare r 90 minus theta comes out to be the same as was this. So therefore, you have understood the proof of this. Students, please give the feedback by raising your hand if you have really understood the proof. Shabash. Please raise your hand if you have really understood. Medical students, can't you please raise the hand if you have understood, bete? मेरे को कई बार बस क्या बताऊं. Okay, thank you. Now we were moving to question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 पे स्टार लगाओ, क्योंकि अगर मैंने पेपर बनाना होता आपका तो मैं 11th क्वेश्चन को पेपर में डाल देता.
Please read the question. Now, better listen carefully. Let me explain the question. There are two buildings. Your attention. There are two buildings, and each is of height 200 meter. They are in front of each other. Okay. Listen carefully. Listen carefully. And the gap between them is 100 meter. Now, according to question, from the top of both buildings, the horizontal projectiles are thrown. Just see the figure. One horizontal projectile at the same moment is thrown this way. Another projectile is thrown in the same manner. And they are thrown with equal velocities at the same moment of time. Time of throw, same initial velocity, 25 meter, same. Now, naturally, while coming down, these two projectiles will hit somewhere. Suppose they are hitting somewhere here. Now, your question is, दो चीजें बतानी है. After the throw, after how much duration, the projectiles collide, कितनी देर बाद आपस में टकरा जाएंगे. दूसरी बात वो पूछता है, वो प्रोजेक्टाइल्स कहां पर टकराएंगी, यानी जमीन से कितनी हाइट पर टकराएंगी, वाई भी आपको बताना है. Where and when the two projectiles will collide? This is your question number 11. शाबाश. इस बार नॉन मेडिकल के बच्चे जिसमें दम है, माइक पे आ जाओ. जिसमें दम है इसका आइडिया बताने के लिए. नॉन मेडिकल में एनीबॉडी अमंग गर्ल्स? Nobody is daring. Anybody among boys with the yellow turban? Nobody. Anybody among boys with blue t-shirt? Non-medical? Any single person from non-medical? गलत बात होगी. अच्छा, ऐसे करते हैं, इस क्वेश्चन का टीचर आपको वर्बल आइडिया देगा, सिर्फ आइडिया दूंगा मैं, और मेरा आइडिया सुन के आप इसको करोगे. देखते हैं आंसर आता है कि नहीं. मैं आइडिया दे रहा हूं, सॉल्व नहीं कर रहा. मेडिकल के स्टूडेंट ध्यान से सुन ले. लिसन बच्चे, इतनी बात तो पक्की है ना कि बॉडी जहां पर टकराएगी उसको उधर से आने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना इधर से. बिल्डिंग्स की हाइट बराबर है और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी बराबर दे रखी है. हाँ जी सर, जितना टाइम उधर से लगेगा उतना ही इधर से लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग वेलोसिटीज भी बराबर हैं. ठीक है, और इकट्ठी फेंकी गई हैं. ठीक है. अब सवाल ये पैदा होता है कि उसको नीचे को लाएगा कौन. प्रोजेक्टाइल तो हॉरिजॉन्टली फेंकी है, पर नीचे को कौन लाएगा? सर ग्रेविटी लाएगी, ग्रेविटी. ओके. अगर ग्रेविटी लाएगी तो ग्रेविटी ने कितना गिरा दिया यहां तक? सर ग्रेविटी ने गिरा दिया 200 माइनस वाई. वाई क्या है सर? टकराने वाली जगह जमीन से कितनी ऊंची है वो है वाई. तो 200 माइनस वाई नीचे को गिराना पड़ा. मैंने कहा ठीक है. तो टकराने तक डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, टकराने तक डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 माइनस वाई. हाँ जी सर, आगे सुना. लेकिन कितनी वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी से नीचे को आती है बॉडी. सर ये क्या बोल रहे हो आप? स्टार्टिंग वेलोसिटी तो नीचे को हो ही नहीं सकती. क्यों? सर आपने बोला ना बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करा है, और थोड़ी देर पहले आपने बोला था जो वेक्टर हॉरिजॉन्टल हो उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0, जो वर्टिकल हो उसका हॉरिजॉन्टल 0. तो आप कह रहे हो हॉरिजॉन्टल
बॉडी को फेंका, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो उसका है ही नहीं नीचे को। इसका मतलब अगर मैं वर्टिकल मोशन डिस्कस कर रहा हूं तो मैं बेटे यू को 0 मीटर पर सेकेंड ले सकता हूं। ओके सर। और अल्फाबेटिकली लिखो, ASTUV। नीचे को आते हुए ग्रेविटी कितना होएगा सर? वो तो आप ले ही सकते हो, जी। ओके बेटे। और बेटे टाइम मैं निकालना चाहता हूँ। हाँ जी सर। तो ऑर्फन मेथड के द्वारा, योर अटेंशन, ऑर्फन मेथड के अकॉर्डिंग वी ऑर्फन सिंबल हो गया ऑर्फन। सर ऑर्फन क्या होता है? एनी दैट सिंबल विच इज नाइदर आस्क्ड नॉर गिवन। तो वी फाइनल वेलोसिटी जब वो टकराई यहाँ पर, तो कितनी वेलोसिटी से टकराई, इसके बारे में ना तो क्वेश्चन पेपर सेटर इंटरेस्टेड है, ना उसने पूछा है, ना उसका डाटा दिया। तो इसलिए हम वो इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें वी ना हो। सर वी ना हो तब तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ एटी। मैंने कहा ठीक है, कर देते हैं। सर 200 माइनस वाई U0 इंटू टी। सर हाफ ग्रेविटी को चलो आप 10 ले लो सर, और टी का स्क्वायर। तो मैंने कहा बेटे ये 200 माइनस वाई, ये तो काट के 5t² आ गया। तुम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक इक्वेशन में दो दो वेरिएबल आ गए हैं। दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशंस चाहिए कम से कम। अब बच्चे को फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। बच्चा कहेगा, ध्यान से सुनना, बच्चा कहेगा सर आपको पता है आपने इस 100 मीटर का बिल्कुल भी फायदा नहीं लिया। मैंने कहा हाँ यार। तो सर जब दोनों बॉडीज सिमेट्रिकल गिर रही हैं, बराबर की हाइट से गिर रही हैं, इकट्ठी फेंकी गई, इक्वल वेलोसिटी से फेंकी गई, तो इतना तो आपको मानना ही पड़ेगा कि ये 50 मीटर है, मिड पॉइंट पे ही तो टकराएंगी। मैंने कहा यस बेटे। इस कहता इसको एक्स मान लो। मैंने कहा ओके, एक्स इज इक्वल टू 50 मीटर। सर इतना तो आपको मानना ही पड़ेगा, जितना टाइम 200 माइनस वाई को कवर करने के लिए लगा, उतना ही एक्स को कवर करने के लिए लगा। टाइम फैक्टर तो सेम ही है। आई सेड बिल्कुल सही। और एक बात सर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको लिखना चाहिए u इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर सर एक्स की वैल्यू यहां रख दो, और u तो आपको दिया ही हुआ है 25। तो मैंने कहा यहां से तो टाइम निकल जाएगा फिर 50/25। यस सर, 2 सेकेंड। एक आंसर तो आ गया आपका। कब टकराएंगी? 2 सेकेंड पर। बॉडी के गिराए जाने के 2 सेकेंड बाद टकरा, आपस में टकरा जाएंगे। लेकिन सर वाई कैसे निकालोगे अभी भी? मैंने कहा ये देखो व्हाइट वाली इक्वेशन, उसमें टी को पुट कर दो। व्हाइट वाली इक्वेशन में टी की वैल्यू पुट कर दो बच्चे। तो 200 माइनस वाई इज इक्वल टू 5t। टी मतलब 2 का स्क्वायर। सर ये आपका 20 आ गया, 20। तो 20 को इधर ले जाओ, वाई को उधर ले जाओ। 20 को इधर ले जाओ बेटे, वाई को उधर ले जाओ। तो हाउ मच? 200 माइनस 20 इज इक्वल टू वाई। तो वाई आ गया 180 मीटर। 180 मीटर आ गया वाई। अब देखते हैं कौन सी ऑप्शन सही है। शाबाश, कौन सी ऑप्शन सही है बेटे? आ गई ना? ए ऑप्शन सही आ गया। इस क्वेश्चन पे सभी बच्चे मेरे कहने पे स्टार लगा दो। मेडिकल वाले तो जरूरी लगा दो, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉन मेडिकल के बच्चे भी नहीं बता पाए, जो कि रोज मैथ करते हैं। रोज मैथ करने वाला बच्चा भी इसका आइडिया नहीं बता सका। और अब मेरे को ये भी बता दो, जिनको ये अच्छे से समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड। सुस्ती मत करना बेटे, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव रियली अंडरस्टूड। तो मैं देखता हूं इसमें नॉन मेडिकल का तो अच्छा रिस्पॉन्स है, मेडिकल में कमजोर है हल्का सा। डोंट वरी, डोंट वरी, दोबारा बता देता हूँ, अच्छे से सुन लो। मेडिकल के बच्चे दोबारा से सुन लो। क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में ये था बच्चे, 200 मीटर की एक है, 200 मीटर की एक है,
बिल्डिंग, यहां से बॉल फेंकी, यहां से बॉल फेंकी, बराबर की वेलोसिटी से फेंकी और एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम फेंकी। जब वो टकराएंगी तो कितनी देर बाद टकराएंगी, टाइम बताओ, और जमीन से कितनी हाइट पर होंगी तब ये टकराएंगी। दो बातें बतानी थी। तो मैंने क्या करा, ध्यान से सुनो। एक तो कंक्लूजन निकाल लिया कि दोनों बिल्डिंग्स 100 मीटर दूर हैं और सिमेट्रिकली बॉल्स आ रही हैं, तो नेचुरली मिड पॉइंट पर टकराएंगी हॉरिजॉन्टल के। तो मिड पॉइंट तक टकराएंगी तो 100 का हाफ करा, तो एक्स की वैल्यू जहां पर वो टकराएंगी, ये वाली वैल्यू, ये वाली जहां मार्कर चल रहा है, ये टीचर ने ले ली 100 डिवाइडेड बाई 2, 50 मीटर। तो इधर को जाने के लिए वेलोसिटी कितनी है हॉरिजॉन्टल वाली, 25 मीटर। और कवर कितना करा, 50 मीटर। तो मैंने ये लगाया फार्मूला, देखो बेटे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म मोशन में सिंपल फार्मूला लग जाता है। तो सर इसमें फिर आपने टी कैसे निकाला, इसको इधर, इसको इधर, वैल्यूज पुट करी, तो 2 सेकंड के बाद बॉडीज आपस में टकराएंगी। ठीक है, ये हो गया पहला सोल्यूशन। सर दूसरा सोल्यूशन, वो कितनी हाइट पर टकराएंगी ये कैसे निकालोगे? सुनो ध्यान से। टीचर कहता है, योर अटेंशन बेटे, कि जब वो बॉडी नीचे को आएगी तो इतना ड्रॉप हो जाएगा ना, टकराते टकराते, टकराने तक कितना नीचे को आई ये नोट कर लेते हैं। सर कैसे करोगे? मैं कहता हूँ नीचे वाली चीज अगर हम वाई अज्यूम कर चुके हैं, तो टोटल बिल्डिंग की हाइट 200 थी, तो नेचुरली बॉलों को गिरते गिरते किसी एक बॉल को कितना गिरना पड़ेगा? सर 200 माइनस वाई। देखो वाई और ये वाई, 200 माइनस वाई मिलके टोटल 200 बन गया। सर मानते हैं इतना गिरना पड़ेगा, लेकिन सर नीचे को आने के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी लोगे? मैं कहूंगा 0 लोगे। सर 0 क्यों लोगे? 25 तो दे रखा है भाई, 25 हॉरिजॉन्टल दे रखा है। मैं कौन सा मोशन डिस्कस कर रहा हूँ, वर्टिकल। तो जो वेक्टर हॉरिजॉन्टल दिया हो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता ही नहीं, 0 होगा। इसलिए टीचर ने वर्टिकल मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड ली, और वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितनी ली, 200 माइनस वाई, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे को खींचेगी। एक्सेलरेशन को कितना लिया, 10 मीटर पर सेकंड। और और यहां तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लिया, उसको टी ने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। चलो, तब टीचर ने ये इक्वेशन लगा दी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां तक पहुंच गए। और टी हम ऑलरेडी 2 सेकंड कैलकुलेट करके लेकर आए हैं, इसको यहां पुट कर दो और सॉल्व करके वाई हमारा आ गया 180 मीटर, 180 मीटर। तो बताओ मेडिकल के बच्चे बेटे कॉन्फिडेंटली, हैव यू रियली अंडरस्टूड? रेज योर हैंड। मेडिकल स्टूडेंट्स, इफ यू हैव अंडरस्टूड रेज योर हैंड। अभी भी डरते डरते हाथ खड़ा करते हैं। बेटा देखो, सारी चीज टीचर पे नहीं गिरा सकते आप, कि मैं आपको लस्सी की तरह सारे न्यूमेरिकल सिखा दूं। थोड़े से आपको भी एफर्ट करने होंगे। आप अपने दिलों से पूछ के देखो, पिछले 10 दिनों में कितने न्यूमेरिकल करे एट योर ओन, और मेरे से पूछो कि आपको पिछले 10 दिनों में मिनिमम टू मिनिमम 50 न्यूमेरिकल करने चाहिए थे, 50। और अपने दिलों से पूछ के करो कि 50 का आधे भी करे हैं आपने, देख लो बस। फिर अब हम क्वेश्चन करेंगे 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन, अब मेरी जजमेंट ये कहती है, देखो मैं किसी से नहीं पूछा अभी, मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस कहता है कि 12th क्वेश्चन कोई भी बच्चा नहीं बताएगा माइक पर आकर। लेकिन अगर तुम मेरे को गलत प्रूव कर दो, नहीं सर आई कैन टेल, सो आई विल बी वेरी हैप्पी। शाबाश। 12th क्वेश्चन, एनीबॉडी फ्रॉम नॉन मेडिकल और फ्रॉम मेडिकल? प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। शाबाश।
एनीबॉडी हु कैन टेल। अब मैं एक बार क्वेश्चन का मीनिंग समझा के भी आपसे दोबारा पूछूंगा। पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझा देता हूं। सभी बच्चे एक बार देख लो बेटे, सभी बच्चे एक बार देख लो प्लीज। ये जो ब्लू कलर की लाइन लगाई है, ये है जमीन, हॉरिजॉन्टल जमीन है, भूमि है। और ये जो येलो कलर की लाइन लगाई है, ये एक इंक्लाइंड फट्टा है, टेढ़ा फट्टा लगा रखा है, टेढ़ा फट्टा। ठीक है बेटे। अब वो कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से आपने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करा। हमने कहा जी ठीक है, कर दिया। ये व्हाइट कलर से उसने ये ऐसे थ्रो करा, वो इधर टकरा गई जाके। ओके, अब ध्यान से सुनना, ये क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। ओके सर। तो जहां पर वो टकराई ना, ध्यान से सुनना, उस डिस्टेंस को उसने यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को एक्स बोल दिया, एक्स। हमने कहा ठीक है जी, क्या कहना चाहते हो फिर अब? कहता पहले मैंने इस थीटा को 60 डिग्री सेट करा, 60 डिग्री सेट करा तो एक्स उस पे निकाल लिया, और बेसिकली उसने उसको x1 बोला है। फिर कहता मैंने इस येलो वाले फट्टे को ना नीचे को दबा दिया, थोड़ा सा ऐसे नीचे को दबा दिया, तब मेरा ये थीटा 30 डिग्री हो गया। तब मेरा ये जहां पर टकराएगा उसको जाकर, उस वक्त मैंने x की वैल्यू को x2 कह दिया। इन दोनों की रेशो कितनी होएगी, ये मैंने आपसे पूछा। शाबाश। जब पहली बार फेंका और दूसरी बार फेंका, इनिशियल वेलोसिटी सेम ही थी। अब तो बताओ कोई बच्चा अगर बता सके, एनी बॉडी अमंग होल स्कूल, पूरे स्कूल में से एक भी बच्चा जो बता सके। अरे कोई जो नहीं बता रहे वो कम से कम फिगर तो बना लो, डोंट वेस्ट टाइम। अब बच्चा कहता है सर नहीं। देखो, अब टीचर इसको कैसे सॉल्व करता है, ध्यान से सुनो बेटे। शाबाश, सभी बच्चे ध्यान देंगे तभी समझ आएगा। मैं इस फिगर में हल्की सी मॉडिफिकेशन करने लगा हूं। योर अटेंशन, ध्यान से। सर क्या मॉडिफिकेशन करने लगे? ध्यान से सुनना बच्चे। अगर मैं किसी भी जगह पर आपसे ग्रेविटी की डायरेक्शन बोलूं, पूछूं, तो किधर को होगी? सर ये क्या बात कर दी आपने, ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। मैंने कहा बिल्कुल सही, ग्रेविटी इज वर्टिकली डाउनवर्ड। बहुत अच्छे। फिर मैंने उस बच्चे से पूछा, ओके, इस मोशन के लिए जब हॉरिजॉन्टल थी तो ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे हमें ये ग्रेविटी काम आती थी, तो हमने फट्टा ही टेढ़ा कर दिया। तो फट्टा ही टेढ़ा कर दिया हमने तो। हाँ जी सर। तो इसका मतलब इस फट्टे के परपेंडिकुलर ये लाइन आ गई। बिल्कुल सर। अब टीचर पूछता है, भाई पहले तो सबसे पहले तुम मेरे को ये एंगल बता दो जिसको मैंने ग्रीन कलर से शेड करा हुआ है, ग्रीन कलर से शेड करा हुआ है। एक बच्चा कहता है सर मैं बताऊं। मैंने कहा बताओ भाई। सर जो भी आपका ये टोटल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना, टोटल, यस, तो सर उस टोटल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में से ना थीटा माइनस कर दो आप। टोटल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में से थीटा माइनस कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई, बिल्कुल सही बोलते हो, और ये आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए। ये तो आपने डिस्कशन कर दिया, ठीक है, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगेगी? सर इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। पर सर इसमें एक मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी आपको। कौन सी? सर देखो, अगर आप इस ये जो डायग्राम से आपने बनाई है ना ग्रेविटी वाली, इसको साइड पे बनाओ। मैंने कहा ये लो ग्रेविटी इधर को,
और ये एंगल इधर को। सर आप बता सकते हो ये एंगल कितना होएगा? बता सकता हूँ। सर कितना? लो, ये लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल। नो सॉरी, व्हाइट वाली लाइन क्या है? वर्टिकल। और ब्लू वाली लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब ये हुआ, एक लाइन ऐसे है तो एक लाइन ऐसे है। ओके। येलो वाली लाइन क्या है सर? इंक्लाइंड है। और येलो वाली के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है एरो? सर ये वाला। तो दो लाइनों के बीच में जो एंगल होता है, वही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल होता है। सेवंथ क्लास थ्योरम मैथ की। फिर से सुन लो। अगर एक लाइन ऐसे हो, एक लाइन ऐसे हो, तो दूसरी उनके ऊपर दो लाइनें परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। देखो ये वर्टिकल ड्रा कर दी, और ये इंक्लाइंड के ऊपर नाइन परपेंडिकुलर ड्रा कर दी। देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो जो एंगल यहां बनता है ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस, वही एंगल इधर बनेगा, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स। तो इसका मतलब ये थीटा ले सकता हूं मैं। ओके सर। अगर अब इसको थीटा को दो, अब जी को कंपोनेंट में बांट दो सर, तो ये कंपोनेंट आ गया जिधर एंगल बना होता है जी कॉस थीटा, और जिधर एंगल नहीं बना होता उसके परपेंडिकुलर जी साइन थीटा। बिल्कुल सही। तो बच्चा कहेगा सर आपको ना, इस प्रोजेक्टाइल में बॉडी हमारी उधर को जा रही है और एक्सेलरेशन इधर को लग रहा है, देखो एक्स हमारा उधर को है, तो आपको ये एक्सेलरेशन यहाँ पुट करना पड़ेगा, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। आई सेड ओके। तो फिर v को जीरो का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस, और क्या बेटे, g साइन थीटा विद नेगेटिव साइन, और साथ में s की जगह x लगा दिया हमने। तो बच्चा कहेगा माइनस माइनस कट गया सर, यू स्क्वायर इक्वल टू 2g साइन थीटा एक्स। अब टीचर कहता है बेटे x की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी? सर देखो आपकी x की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर बाय 2g, पहली ब्रैकेट, और दूसरी ब्रैकेट 1/sin थीटा। अब टीचर कहता है अच्छा, ये तो तुमने जनरल में x निकाला है, अब x1 और x2 निकालना। सर x1 ऐसे निकाल लेते हैं, ये लो, x1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2g डिवाइडेड, और नीचे 1/sin थीटा, साइन 60 डिग्री सर आपने ही बताया था। ओके। x2 निकालना बेटे। सर यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये तो उतना ही आएगा। सर 1/sin 30 डिग्री पुट करना पड़ेगा। मैंने कहा आपसे पेपर में क्या पूछा हुआ है? सर इन्हीं दोनों की रेशियो ही तो पूछी है आपने, तो डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करा, तो पहली ब्रैकेट सारी कट गई देखो, और साइन रेसिप्रोकल में होने की वजह से ये रेशियो बन जाएगी sin 30/sin 60। और sin 30 हाफ होता है बेटे, sin 60 होता है √3/2। तो ये सॉल्व करके आ गया 1/√3, 1/√3। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। देख लो एक बार, ये भी एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था। चलो, अब सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट आ गए बेटे। तो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आ गया एक्चुअली। तो मैं अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। मैक्सिमम पोर्शन तो सर ने बता दिया होगा, फिर भी मैं समरी कर दूं। शाबाश, योर अटेंशन। सुनो, बॉडी अगर ऐसे घूमे तो उसको बोलते हैं, जैसे मैंने सर्कल ड्रा करा, काउंटर क्लॉकवाइज। और चाहे बॉडी क्लॉकवाइज घूमे, रिजल्ट जो लगेंगे वो सेम लगेंगे। दूसरी बात, अब अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे सर सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है? वेलोसिटी, वेलोसिटी किसी बॉडी की कांस्टेंट, ये मुमकिन है?
पॉसिबल है? मैंने कहा बेटे वेट, वेलोसिटी कब कांस्टेंट होती है? सर आपने सिखाया था यूनिफॉर्म मोशन में, ध्यान से सुनना, जब एक बॉडी एक पर्टिकुलर दिशा में जाए, ना तेज हो ना स्लो हो, और ना ही अपनी दिशा चेंज करे, ना डायरेक्शन चेंज करे, ना ही स्लो हो ना ही फास्ट हो, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, तब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट कही जाएगी। ओके, तो मैंने कहा आ जाओ फिर सर्कुलर मोशन में। जब बॉडी यहां पर थी तो कैसे होएगी वेलोसिटी सर? अलोंग टेंजेंट होएगी सर। जब बॉडी यहां पर थी तब किधर को होएगी वेलोसिटी? सर अलोंग टेंजेंट। तो मैंने बच्चों को बोला कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में ना तेज हो रही है ना स्लो हो रही है, फिर भी उसकी हर मौके पर डायरेक्शन तो अलग होगी कि नहीं होगी? हाँ जी सर। पर क्यों होगी? बिकॉज direction of the velocity at any moment is given by the tangent drawn to the circle at that moment. सर ये वही टेंजेंट है जो 10वीं क्लास में हम पढ़ते थे, एक सर्कुलर लाइन सर्कल है उससे टच करती हुई लाइन एक ही पॉइंट पर टेंजेंट होती है। यस, सेम टेंजेंट जो रेडियस के परपेंडिकुलर भी होती है, 10वीं क्लास में, पता नहीं 9th में पढ़ते थे आप। तो एट एनी मोमेंट द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी इज डिफरेंट, क्योंकि टेंजेंट्स की डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो इसका मतलब अगर बॉडी ना तेज हो रही है ना स्लो हो रही है, स्मूथली चल रहा है साइकिल, तब भी डायरेक्शन तो चेंज हुई ना। तो इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट कभी सर्कुलर मोशन में होती ही नहीं। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। दूसरी बात, तो सर स्पीड तो सेम हो सकती है ना? भाई स्पीड में डायरेक्शन कंसीडर करते हैं? सर हमें क्या पता, नहीं करते, क्योंकि स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड देखा जाता है। हाँ सर फिर तो हो सकती है। कैसे हो सकती है? सर मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक उसने 30 मीटर आर्क कवर करी 5 सेकंड में, तो अगली भी 30 मीटर आर्क उसने 5 सेकंड में ही कवर करी, तो अगली भी 30 मीटर आर्क उसने 5 सेकंड में कवर करी। इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता स्पीड में। हाँ जी सर, स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है फिर। यस, अगर कोई पूछे सर्कुलर मोशन में क्या स्पीड का कांस्टेंट होना मुमकिन है, तो आप कहोगे हाँ जी पॉसिबल है। अब ध्यान से सुन लो, साइंटिस्टों ने बोला सर्कुलर मोशन के चैप्टर को छोड़ के, ध्यान से सुनना, बाकी किसी भी चैप्टर में यूनिफॉर्म मोशन हम तब बोलते हैं अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो। वेलोसिटी, पर यहां तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही नहीं। लेकिन कहता सर्कुलर मोशन में मैंने चेंज कर दी डेफिनेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? हमने कहा बताओ जी। कहता जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहे वो तो बोला जाएगा यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर कोई बॉडी चलते चलते ये स्लो हो जाए या फास्ट हो जाए, या स्लो हो जाए या फास्ट हो जाए, तब वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन माना जाएगा। नॉन। तो हमने कहा अच्छा, सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को डिफाइन करने के लिए स्पीड का फायदा ले लिया साइंटिस्टों ने, वेलोसिटी पे बात ही नहीं करी। आंसर इज यस। जितने बच्चों को ये चीज समझ आ गई, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। अगर समझ आ गया व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लो भाई, मेडिकल में पहले बेंच पे बैठी हुई लड़की को नहीं समझ आया, माइक पे बुला लूं फिर इसको मैं? आजा भाई ब्लू टी शर्ट, आजा, नहीं तो आजा बस अब तो आजा, सारी क्लास का टाइम खराब, अब बाद में हाथ खड़ा करने का क्या मतलब, जल्दी आजा बेटे। सेंट्रल लाइन फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ अकेला बच्चा, माइक पे आए मेडिकल, आ जाओ फटाफट। सुस्त बच्चों से तो मेरे को बहुत ओ हेट है ना। बताओ इसमें क्या नहीं समझ आया? आई सेड if the body while covering the circular motion it traces equal lengths of arc in equal intervals of time, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और अगर वो अनइक्वल
आर्क से लेंथ कवर करती है सेम टाइम लेते हुए। कभी ये तो 5 सेकंड में ये 10 मीटर चल पड़ी, अगले 5 सेकंड में 12 मीटर चल पड़ी, अगले 5 सेकंड में 15 मीटर चल पड़ी, तब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बताओ इसमें क्या नहीं समझ है? माइक पर आके बताओ बेटे, आपने हाथ नहीं खड़ा करा, सारा टाइम लग रहा है। माइक पे बोलो क्या नहीं समझ आया, बस मेरे को ये बता दो। क्योंकि आपका हाथ नहीं खड़ा हुआ था, सारे क्लास सारे स्कूल का टाइम ले रहे हो आप अकेले। समझ आया या नहीं आया? अरे बच्चा बोलता नहीं, माइक तो पास करो पहले। आप बताओ समझ आया या नहीं आया? फिर हाथ क्यों नहीं खड़ा करा था? मेरे को पता था, मेरे को पहले ही पता था। जाओ, मेरे को पहले पता था कि कोई बच्चा इतना कमजोर हो ही नहीं सकता कि उसको ये छोटी सी बात ना समझ आए। लेकिन ये तो इतना सा हाथ में जब तुम सुस्ती करते हो ना, तो मैंने माइक पे बुलाना ही होता है आपको। उस बच्चे को जरूर बुलाऊंगा जिसको समझ आ गया पर हाथ नहीं खड़ा करा। ओके, अब अगली बात बेटे, शाबाश, योर अटेंशन। अब सर्कुलर मोशन में बहुत सारी बातें बतानी है मैंने। सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक जोड़ने वाली लाइन को रेडियस कहते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन इस रेडियस की डायरेक्शन किसी किसी बच्चे को पता होती है। इसकी डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड लेनी है। सभी बच्चे याद कर लें, रेडियस इज ए वेक्टर हुज डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड, हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ। और एक बात सुन लो, ध्यान से सुन लो। अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है, योर अटेंशन, और उसने मान लीजिए इतनी आर्क कवर कर दी, इतनी इतनी आर्क लेंथ कवर कर दी इतने टाइम में, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, इसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। और दूसरी बात और सुन लो, जब ये बॉडी यहां पर थी, ध्यान से सुनना, तो इस रेडियस वेक्टर ने ये पोजीशन ले रखी थी। लेकिन बॉडी यहां से यहां पहुंच गई, यहां से कहां पहुंच गई, यहां पर। जब यहां पहुंच गई तो इसका मतलब रेडियस वेक्टर वहां पहुंच गया। तो ऐसा करने से मैं आपसे पूछूं कि बेटे इस रेडियस वेक्टर ने कितने एरिया के ऊपर झाड़ू लगा दिया, हाउ मच एरिया इज स्वेप्ट। आप कहोगे सर इतना एरिया स्वेप्ट कर दिया, तो इतना एरिया स्वेप्ट करने में एंगल कितना ट्रेस कर दिया? सर थीटा। तो थीटा को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाउ मच एंगल ट्रेस्ड दैट इज टेकन इन रेडियंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इसको बोलते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। ऊपर वाली क्या थी, लीनियर वेलोसिटी, वो क्या है, हाउ मच आर्क इज ट्रेस्ड इन हाउ मच टाइम, लीनियर वेलोसिटी। हाउ, और उस आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल एक्सटेंड सबटेंड कर दिया, एंगल ट्रेस्ड इन हाउ मच टाइम, एंगुलर वेलोसिटी। और एक बात, जूनियर क्लासेस में आप 10th क्लास में पढ़ते आ रहे थे, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये तो कभी नहीं भूलना, रेडियन में लेना है ये एंगल, डिग्रीज में नहीं लेना। सर हमें तो डिग्री वाला ही आता है, तो आपको ये याद करना चाहिए, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। तो आप इस इक्वेशन का फायदा लेके किसी भी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पूछूं आपसे 60 डिग्री कितना होगा, आप कहोगे सर आपने 180 का 1/3 कर दिया, देखो, तो पाई का भी आप कितना कर दो, 1/3। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। और जब इन तीन फार्मूलों को ध्यान से देखना बेटे, जो टीचर ने तीन फार्मूले टिक कर रहा है, 1, 2 और 3, इन तीनों को क्लब करके एक नया रिजल्ट निकालते हैं, तो ये निकलता है लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। ये इन तीन बेसिक फार्मूलों से आया। ओके, एक और भी वेलोसिटी होती है इसमें, वो भी सुन लो। सर वो कौन सी? जितना ये एरिया कवर कर दिया, एरिया कितना स्वीप कर दिया, एंगल नहीं लेना, ना तो आर्क लेंथ लेनी है, ना तो एंगल लेना है येलो वाला, एरिया कितना स्वीप कर दिया, एरिया। हाउ मच एरिया इज स्वेप्ट ऑफ द सेक्टर इन हाउ मच टाइम, दैट इज नोन एज एरियल वेलोसिटी।
एरियल वेलोसिटी। इस वक्त बोर्ड के ऊपर 5 बॉक्सेस बने पड़े हैं, 1 2 3 4। ये पांचों बॉक्सेस कॉपी पे नोट कर लो। हरी अप सर्कुलर मोशन के बेसिक्स में। Excuse me, sir, time हो गया सर क्लास। ओके सर, ओके तो बेटे नोट कर लो, ये लास्ट स्कूल टीचर्स की मेरे को इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कि हम आगे नहीं ले सकते लेक्चर। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 और 14 कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 14 सबमिट कर दे। जाओ बेटा।